اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد النوع الثالث ما ولا المشبہتان بلیسہ فی النفی والدخول علی المبتدأ والخبر ترفعان الاسم وتنصبان الخبر الی آخرہ۔ ہماری بحث عوامل سماعی کی 13 نوع کو بیان کرنے کے بارے میں تھے، تو پہلی اور دوسری نوع ہم نے بیان کر چکے ہیں اور ابھی ہماری جو باری ہے وہ تیسری نوع کو بیان کرنا ہے۔ تو تیسرے نوع میں جو ہے ما ولا کو بیان کر رہا ہے۔ یہ ما ولا جو ہے ما حرف ما اور حرف لا، یہ دونوں مشبہتان شباہت رکھنے والے ہیں لیسا کے ساتھ۔ کس چیز میں؟ تو لیسا کے ساتھ نفی کرنے میں۔ جس طرح لیسا جو ہے نفی کرنے کے لیے آتے ہیں کسی کلام کو، مثبت کام کو، تو یہاں پر یہ ما ولا بھی جو ہے اس چیز کی نفی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور یہ ما ولا جو ہے مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ مبتدا کو اپنا اسم بنا کر رفع اور خبر کو اپنا مفعول بنا کر نصب دیں گے۔ یہ ما ولا کا کام ہے جو کہ مبتدا کو اسم اور خبر کو نصب دیں گے مفعول بنا کر۔ اور یہ ما جو ہے معرفہ اور نکرہ دونوں پر داخل ہوں گے، یعنی اس میں معرفہ پر بھی حرف ما داخل ہو سکتے ہیں جو مشبہتان بلیسا والی ہے، اور اسی طرح نکرے پر بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں وہ اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیں گے۔ اسی طرح لا جو ہے یہ نکرے پر داخل ہوں گے، معرفے پر داخل نہیں ہوں گے، یعنی اس میں معرفے پر داخل نہیں ہوں گے، فقط نکرے کے ساتھ مختص ہے۔ پہلے ہم اس کو پڑھیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ نوع رابع کو شروع کریں گے۔ النوع الثالث، تیسری نوع، ما ہے، ولا ہے، المشبہتان، دونوں جو کہ ما ولا مشابہت رکھتے ہیں بھی لیسا، لیسا کے ساتھ۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ما ولا جو ہے لیسا کے ساتھ مشابہت ہے تو کس چیز میں ہے، شباہت کس چیز سے رکھتے ہیں؟ تو جواب دیں گے فی النفی، نفی کرنے کے حوالے سے۔ جس طرح حرف لیسا جو ہے کسی چیز کو نفی کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اسی طرح یہ ما ولا بھی جملے کی نفی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ والدخول علی المبتدأ والخبر، اور یہ ما ولا جو ہے مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ترفعان الاسم، اسم کو رفع دیں گے، یعنی یہ مبتدا ما ولا جو ہے اسم کو رفع دیں گے، وتنصبان الخبر، اور خبر کو نصب دیں گے۔ یہ ایک حکم ہو گیا، یعنی یہ جب مبتدا و خبر پر داخل ہوں گے تو ایک کو رفع اور ایک کو نصب دیں گے، یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وَتَدْخُلْ مَا عَلَى الْمَعْرِفَةِ وَالنَّكِرَةِ، یہ ما جو ہے معرفے پر بھی داخل ہوتا ہے، یعنی اس میں معرفے پر بھی اور اس میں نکرے پر بھی داخل ہو سکتا ہے، دونوں کے لیے جائز ہے داخل ہونا اس کا۔ مثال کے طور پر ما زید قائما، تو یہاں پر ما زید قائما میں ما جو ہے مشبہہ بلیسا ہے، زید اسم ما ہے جو کہ مبتدا ہے، قائمن اس کی خبر ہے جو کہ منصوب ہے۔ اسی طرح ابھی ہم نے کہا کہ ما جو ہے معرفہ اور نکرہ دونوں پر داخل ہو سکتے ہیں، جیسے کہ ما زید قائمن، زید اسم ما، قائمن خبر ما، جو کہ زید مرفوع ہے اور قائمن منصوب ہے۔ آگے فرماتے ہیں ولا تدخلوا لا، لا جو ہے داخل نہیں ہوتا الا علی النکرتی، فقط بفقط وہ نکرے پر داخل ہوگا، معرفے پر داخل نہیں ہوگا۔ جیسے نحو، مثال کے طور پر لا رجل ظریفن، تو یہاں پہ جو ہے لا جو ہے
रजुल पर दाखिल हुआ है जो कि नकरा है, ये मारिफे पर दाखिल नहीं हो सकते। तो मा जो है मारिफा और नकरा दोनों पर, ला फ़क़त नकरे पर दाखिल होंगे। अन्नूउर राबि, चौथी नू ये है कि चंद हुरूफ के बारे में ज़िक्र कर रहे हैं जो फ़क़त इसम को नस्ब देंगे। चूँकि सबसे पहली जो नू है वो हुरूफ जारा के बारे में बयान किया, दूसरी नू जो है हुरूफ मुशब्बहा बिलफ़ेल के बारे में ज़िक्र किया, और तीसरी नू जो है माउला मुशब्बहतान बिलइसा के बारे में ज़िक्र किया, और चौथी नू जो है हुरूफ है जो कि फ़क़त इसम को नस्ब देंगे। और ये जो फ़क़त इसम को नस्ब देने वाले हुरूफ है वो कुल टोटली 7 हुरूफ है। उनमें से सबसे पहला वाव है जो बिमाना मा आता है और ये अपने माबाद आने वाले इसम को नस्ब देंगे। एक जैसे कि इस्तवल माउ वल खशबा, ये इसके वाव की मिसाल है। यहाँ पर इस्तवल मअल खशबा है। इसी तरह जो है हर्फ इल्ला है दूसरा जो 7 हुरूफ में से, जो कि फ़क़त इसम को नस्ब देते हैं, वो इल्ला है जो कि इस्तिस्ना के लिए आते हैं। जैसे कि जा अनिल कौमु इल्ला ज़ैदन, तो यहाँ पर ज़ैदन मंसूब है तो ये इल्ला की वजह से है, यानी सारी कौम मेरे पास आए सिवाय ज़ैद के। तो यहाँ पर इल्ला ज़ैदन में ज़ैदन मंसूब है इल्ला की वजह से, जो कि अपने माबाद में आने वाले इसम को नस्ब देंगे। ये 2 हो गई। तीसरी चीज़ जो है या है, हर्फ या, जो कि निदा के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये हर्फ या जो है निदाए करीब के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और निदाए बाईद के लिए भी इस्तेमाल होता है। दूर के लिए भी इशारा करना हो तो आप या को इस्तेमाल कर सकते हैं अरबी में, और करीब के लिए इशारा करना हो तो भी आप या को इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा हो गया। चौथा जो है अया है और 5वां जो है हया है। तो ये दोनों भी निदा के लिए आते हैं, लेकिन वो निदाए बईद के लिए इस्तेमाल होंगे। यानी या के बाद जो है अया और हया, या जो है करीब व बाईद दोनों के लिए, अया और हया जो है निदाए बाईद के लिए फ़क़त इस्तेमाल होंगे, करीब के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। उसके बाद जो है छठा जो है आई है और ये जो है आई और इसके साथ है एक हमज़े मफ्तूहा आ, जिसे आप ताबीर कर सकते हैं अरबी में। ये दोनों आई और आ जो है ये दोनों निदाए करीब के लिए इस्तेमाल होता है। आप किसी करीब चीज़ की तरफ इशारा करना हो तो इशारा के लिए यहाँ पर ए और आ इस्तेमाल किया जाता है, हमज़ा जिसे कहा जाता है हमज़े मफ्तूहा। तो यहाँ पर कुल टोटली इस नो एराबी में 7 हुरूफ बयान किए, वाव, इल्ला, या, अया, हया, ऐ और हमज़ा मफ्तूहा। इनमें से वाव और इल्ला को खारिज करके बाकी 5 जो हुरूफ निदा है ये अपने माबाद इसम को नस्ब देने के लिए एक शर्त रखते हैं। वो शर्त ये है कि वो अपने माबाद आने वाला जो इसम होगा वो किसी और इसम की तरफ इजाफ़ा हो। जब ये अपने माबाद वाला इसम की तरफ इजाफ़ा होगा तब ये अपने माबाद इसम को नस्ब दे सकते हैं। व इल्ला अगर दूसरे जो इन हुरूफ निदा के बाद आने वाला इसम जो है किसी और इसम की तरफ इजाफ़ा ना हो, उस सूरत में वो मरफू होगा, मंसूब नहीं होंगे। तो जैसे कि यहाँ पर बयान करते हैं, जैसे कि एक 2 मिसाल हम यहाँ पर पेश करेंगे। आया ग़ुलाम ज़ैदिन, मसलन आया ग़ुलाम ज़ैदिन में आया ने ग़ुलामा को नस्ब दिया है चूँकि ये ग़ुलामा इजाफ़ा हुआ है ज़ैद की तरफ, तो ये मंसूब होगा ग़ुलामा आया के ज़रिए से। लेकिन अगर ये इसम जो आया के बाद आते हैं अगर वो किसी और इसम की तरफ इजाफ़ा नहीं हो रहा तो उस वक़्त वो मरफू होगा। जैसे कि आया ज़ैदू, आप ये इसको ज़ैदू इसलिए पढ़ा है चूँकि ये ज़ैद किसी और चीज़ की तरफ इजाफ़ा नहीं हो रहा। इसकी मिसाल के साथ इंशाअल्लाह तदबीक करेंगे हम इसी दर्स में। अन्नुउर राबि, चौथी नू, हुरूफुन, उन हुरूफ के बारे में ज़िक्र कर रहे हैं जो कि तनसिबुल इस्मा फ़क़त बफ़क़त इसम को नस्ब देंगे। हुरूफुन चंद हुरूफ हैं, तनसिबु
جو नस्ब देने वाले हैं अल इस्मा, इसम को फ़कत सिर्फ बसिर्फ इसम को नस्ब देंगे। वहिया यानी ये वहिया जो है इन्हीं हुरूफ की तरफ, वहिया ये हुरूफ जो इसम को नस्ब देने वाले हैं सबअतु अहरुफिन, कुल 7 हुरूफ हैं। अल अव्वल उनमें से पहली चीज़ जो है हर्फ अल वाव वाव है। वहिया ये वाव बिमाना मा, वाव है तो बिमाना क्या है, मा आता है। नहवु मिसाल के तौर पर इस्तवल माउ वल खशबा, यहाँ पर जो है इस्तवल माउ वल खशबा में इस्तवल माअल खशबा आप पढ़ेंगे, चूँकि यहाँ वाव बिमाना मा है और यहाँ पर जो है इस्तवल मा यानी पानी का ऊपर आना, वल खशबा और लकड़ी का ऊपर आना साथ है, तो इसलिए यहाँ पर वाव बिमाना मा है जो कि खशबा को भी नस्ब दिया है, माँ भी मंसूब होने की वजह से, आतुफ और बिमाना मा है इस वजह से। इसी तरह दूसरा जो इसम को नस्ब देने वाले हुरूफ में से जो है वह इल्ला, हर्फ इल्ला है। वहिया ये हर्फ इल्ला लिल इस्तिस्नाई, इस्तिस्ना के लिए आते हैं, किसी चीज़ को अलग करना हो, एक चीज़ से दूसरी चीज़ को अलग करने हैं तो अरबी में लफ्ज़ इल्ला इस्तेमाल होंगे जो कि इस्तिस्ना के लिए, अलग करने के लिए, अलहदगी को बयान करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर दे रहे हैं नहू जाअनिल कौमु इल्ला ज़ैदन, जाअनिल कौम मेरे पास सारी कौम आई, इल्ला ज़ैदन मगर ज़ैद नहीं आया। तो यहाँ पर जो है इल्ला ज़ैदन में ज़ैदन मंसूब है इल्ला की वजह से, चूँकि वो हुरूफ नासिब इसम है फ़कत, तो यहाँ इल्ला ज़ैदन ज़ैदन मफ़ऊल मंसूब है। ये 2 हो गई। तीसरा जो हर्फ है वह या है, हर्फ या। वहिया ये हर्फ या जो है लिनिदाइल करीबी वल बाईद, निदाए करीब के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और निदाए बईद के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। यानी अगर आपने किसी करीब चीज़ की तरफ इशारा करना हो तो भी आप हर्फ या को इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप बईद के लिए इस्तेमाल करना हो तब भी आप इसी हर्फ या के ज़रिए से ख़िताब कर सकते हैं, इशारा कर सकते हैं। तीसरा जो है वह आया है, चौथा जो है वह आया है हुरूफ नासिब में से जो कि फ़कत इसम को नस्ब देने वाले हैं, और 5वां जो है हया है, आया और हया। वहुमा ये दोनों यानी आया और हया लिनिदाइल बाईदी, फ़कत निदाए बाईद के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी आप किसी दूर की तरफ इशारा करना हो तो वहाँ पर जो है आया और हया का इस्तेमाल किया जाएगा अरबी में। वह आई इन्हीं हुरूफ में से एक जो है छठा जो कि फ़कत बफ़कत इसम को नस्ब देने वाले हैं आई है, और 7वां और आखिरी जो कि इसम को नस्ब देने वाले हुरूफ में से अल हमज़तुल मफ्तूहतु, हमज़ा मफ्तूहा है, हमज़ा मफ्तूहा हमज़ा जिसे कहा जाता है। तो ये दोनों वहुमा ये दोनों लिनिदाइल करीबी, निदाए करीब के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी आप किसी करीब की तरफ इशारा करना हो तो आप ऐ और आ के ज़रिए से आप ताबीर कर सकते हैं अरबी में। वहाज़िहिल हुरूफ़ुल खम्सा, ये जो इसमें इशारा है वो इसका मुशार ले जो है या आया हया ऐ और हमज़ा मफ्तूहा, ये पाँच हुरूफ तनसिबुल इस्मा, इसम को नस्ब देंगे कब, इज़ा कान मुज़ाफ़न इला इस्मिन आखर, ये इसम जब किसी और इसम की तरफ इजाफ़ा हो तब जाके ये हुरूफ निदाए खमसा जो है किसी और को क्या करेंगे, नस्ब देंगे। यानी ये 5 हुरूफ नस्ब तब उस वक़्त इसम को देंगे जब ये इसम जो है किसी और अस्मा की तरफ इजाफ़ा हो। नहवु मिसाल के तौर पर या अब्दल्लाही, यहाँ अब्दा जो है मंसूब है मुनादा, चूँकि ये अब्दा इजाफ़ा हुआ है अल्लाह की तरफ जो कि इसमें आखिर है, जिसे इसमें आखिर से ताबीर किया जाएगा यहाँ पर, चूँकि 2 इसम है अब्द और अल्लाह। या अब्दल्ला व आया ग़ुलाम ज़ैदिन, अब यहाँ आया ग़ुलाम ज़ैदिन में ग़ुलामा मंसूब है, चूँकि ये ग़ुलामा इजाफ़ा है ज़ैद की तरफ,
आया गुलाम ज़ैदिन, तो ये आया की मिसाल हो गई। या आया, या के लिए हमने कहा कि वो निदाए करीब के लिए भी, निदाए बईद के लिए भी इस्तेमाल होता था और जिसके बारे में हमने कहा। और आया जो है निदाए बईद के लिए ही कहा गया था। और इसी तरह वह हया है, वह हया शरीफ अलकौमी, तो यहाँ शरीफा मंसूब है, अलकौम इसमें आखिर की तरफ इजाफ़ा होने की वजह से, तो यहाँ हया भी जो है निदाए बईद के लिए इस्तेमाल होते थे, जिस तरह हमने पहले कह कर आया है। वअई अफ़ज़लुल क़ौमी, अफ़ज़ल क़ौमी में यहाँ अफ़ज़ला मंसूब है, अलकौम इसमें आखिर की तरफ इजाफ़ा होने की वजह से। अब यहाँ ऐ जो है निदाए बईद नहीं बल्कि निदाए करीब के लिए इस्तेमाल होता था, जहाँ पर हमने अभी कह कर आया है। इसी तरह वह अब्दल्ला, अब्दल्ला में हमज़ा मफ्तूहा है, ये भी निदा के लिए आते हैं, तो ये अब जो है इसमें आखिर जो कि अल्लाह है उसकी तरफ इजाफ़ा हो रहा है, तो अब्दल्ला यानी ये निदाए करीब के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके ज़रिए से। व तरफ़उल इस्मा, ये हुरूफ निदाए खमसा जो है इसम को नस्ब दे रहे थे अपने माबाद आने वाले इसम को, चूँकि वो अस्मा किसी और इसम की तरफ इजाफ़ा हो तब उस सूरत में। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, यानी इसके माबाद में आने वाले, इन हुरूफ निदा के माबाद में आने वाले इसम जो है किसी और इसम की तरफ इजाफ़ा नहीं हो रहा है, तो व तरफ़उल इस्मा, उस वक़्त इसम को क्या देंगे, रफ़ा देंगे। इल्लम यकुन, अगर वो नहीं हो, ज़ालिकल इस्म मुदाफ़न, यानी इन हुरूफ के बाद में आने वाला अस्मा किसी और इसम की तरफ इजाफ़ा ना हो, तो उस सूरत में मरफू होंगे। जैसे कि यहाँ पर मिसाल पेश कर रहे हैं, मिसल या ज़ैदू, ये मारफे की मिसाल है। या ज़ैदू, या ज़ैदू में ज़ैद मंसूब होना चाहिए था, मुनादा है, लेकिन यहाँ पर ज़ैदू इसलिए पड़ा है चूँकि मरफू इसलिए पड़ा है चूँकि ये माबाद कोई इसम की तरफ इजाफ़ा नहीं हो रहा। इसी तरह जो है वह या रजुलू, या रजुलू में रजुलू रजुला पढ़ना चाहिए था, मंसूब पढ़ना चाहिए था, नस्ब देने वाले थे, लेकिन यहाँ पर रजुल जो है किसी और इसम की तरफ इजाफ़ा न होने की वजह से यहाँ पर मरफू पढ़ा गया है। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैत ताहिरीन। अभी इंशाअल्लाह हम दरस को ख़त्म करने से पहले ये जो हुरूफ निदा का हमने तज़किरा किया था कि या, आया, हया, ऐ, तो इनके मानी और मतलब और मफ़हूम क्या बनते हैं, इसको हम इंशाअल्लाह अभी बयान करेंगे, इसके बाद दर्स को ख़त्म करेंगे। तो या जो है, या अब्दल्ला मसलन हरफ निदा है जो कि या जो है निदाए बईद के लिए हमने कहा और निदाए करीब के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ये इसका तर्जुमा यूँ होगा कि जब करीब के लिए भी इस्तेमाल होता हो और बईद के लिए भी इस्तेमाल होता हो, तो ये जो है आपके उस फ़हम पर मुनहसर होगा, यानी जो करीब होंगे या बईद होंगे आपको किस तरीक़े से आवाज़ देना पड़ेगा। मसलन आप कहेंगे या अब्दल्ला, आप या अब्दल्ला अगर करीब के लिए इशारा करना है, अब्दल्ला आपके करीब में है, तो आप कहेंगे ए अब्दल्ला। या का मतलब होता है ए है। वैसे अगर देखा जाए तो सारे हुरूफ निदा के मानी जो है ए के माने में आते हैं, जो हम किसी को बुलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो या अब्दल्ला यानी ए अब्दल्ला। अगर आप वही अब्दल्ला है आपके करीब नहीं है जिस तरह पहले थे, बईद है, दूर जाके बैठे, तो आप कहेंगे या अब्दल्ला यानी ए अब्दल्ला, यानी जितना आवाज़ को आप लंबी कर सकते हैं उसी को खींच के पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो है करीब हो तो आप आवाज़ को छोटा करके मसलन या अब्दल्ला कहेंगे। अगर आप नहीं उसी अब्दुल्ला को बईद की तरफ इशारा करना है तो आप कहेंगे या अब्दल्ला। ठीक है, तो ये या के बारे में है। उसके बाद है मसलन यहाँ पर मिसाल दी है आया की, आया ग़ुलाम ज़ैदिन। तो आया जो है ए ग़ुलाम ज़ैद, आप यूँ कहना है ए ग़ुलाम ज़ैद। तो यहाँ भी हमने कहा कि ये निदाए बईद के लिए है, तो आप इसको खींच कर पढ़ेंगे, आया ग़ुलाम ज़ैदिन, ए ज़ैद के ग़ुलाम, तो आप यूँ कहेंगे। तो ये निदाए जो है बईद के लिए इस्तेमाल होता है फ़कत, आया ग़ुलाम ज़ैदिन, ए ज़ैद के ग़ुलाम। इसी तरह जो है वह हया है, हया भी जो है ए के माना में आते हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरों से फ़र्क ये है कि हया जो है इंतबाह के लिए भी साथ इस्तेमाल होते हैं। कोई मुंतबिह नहीं है, आप उसको इशारा भी कर रहा है और दूर भी है, तो आप कहेंगे हया शरीफ अलकौम। ये जो है ज़रूरी नहीं कभी किसी का जो है रिफ़ात बुलंदगी के माना में भी आप इस्तेमाल करना हो, किसी अशरफ इंसान को बुलाना हो तो आप कहेंगे या शरीफ अलकौम, हया शरीफ अलकौम,
اے قوم کے شرفا، اے قوم کے شریف لوگوں، تو آپ اس طریقے سے پکار سکتے ہیں، جو کہ ندائے بعید کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور یہ جو بعد میں رہیں گے اے افضل القوم، یہ اے جو ہے ندائے بعید کے لیے نہیں بلکہ وہ فقط ندائے قریب کے لیے ہے، یعنی اے قوم کے افضل، اے قوم کے افضل، تو آپ کہیں گے اے افضل القوم، یعنی یہ افضل ترین قوم میں سے ہے، تو آپ کہیں گے افضل قوم، اے افضل قوم۔ تو آپ جو ہے اے کا معنی جو ہے قریب کے لیے استعمال کرنا ہو تو شارٹ کر کے آپ اے افضل قوم، اے سب سے افضل ترین قوم کے لوگوں، اس طریقے سے آپ جو ہے پکار سکتے ہیں۔ اسی طرح عبداللہ، یہ بھی ندائے قریب کے لیے ہے۔ عبداللہ، عبداللہ آپ کے قریب میں ہے، آپ اس کو جگا رہے ہیں تو عبداللہ، آپ اس کو انتباہ کر رہے ہیں تو اے عبداللہ، جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں عبداللہ، تو یہ بھی عبداللہ جو ہے ندائے بعید کے لیے، قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور آخر میں ہم نے کہا تھا کہ اگر یہ حروف خمسہ کے علاوہ، ندائے خمسہ کے علاوہ جو ہم نے کہا نصب دیں گے اپنے ما بعد والے اسم کو، لیکن کبھی کبھار رفع بھی ہوں گے۔ رفع اس وقت ہوں گے جب یہ کسی اور اسم کی طرف اضافہ نہ ہو، تو اس وقت ہم نے کہا یا زیدو پڑھیں گے یا رجلو، جس کا معنی یا زیدو اے زید، یا رجلو اے مرد، یعنی رجل جو ہے عربی میں مرد کو کہتے ہیں، ایک بندے کو، تو آپ اس کو یا رجل، اس میں نکرہ ہے، اس کے ساتھ تعبیر کریں گے، اے زید اے مرد۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔